Astro once again. Nilesh ji is here with us with some great insights on meditation and enlightenment. And in the last few episodes, we have discussed a lot of things. Today, we are taking it to the next level. Thank you, Nilesh ji, for joining in once again. Let's start. Thank you, Kabir ji, and thank you all the viewers. So let's start with our sixth episode. Yeah. So in last episode, we have discussed regarding the meaning of moksha and spirituality. Yeah. We have also understood the association of 7 energy junctions and the bodies which is associated with each energy junction, Yeah. which is called chakra. Chakra. Yeah. We have also discussed in brief about the what level these bodies and that this energy junction can activate in the existence. Yeah. Also, I think I remember that in we have discussed regarding the how to understand and how to relate this energy junction with the physical bodies and other two body, etheric body and astral body. Yeah. So now in this episode we are going to discuss how we can align these 3 energy junction and three body associate with it. So let me recap that. So we have a first energy junction which is called root chakra. Yeah. So that root chakra is associated with physical body. We have second energy junction which is Swadhisthana. Yeah. That is associated with etheric body. And third energy junction is Manipur chakra, which is associated with astral body. Yeah. So what we are going to do now, that this all what I have discussed, this is all very scientific, and if you practice exactly, if you practice the awareness exactly, you will find this and you will experience this. Now how we gonna do this, that I'm going to discuss now. So let's talk with the first energy junction, which is physical body. Yeah. Now physical body, the first most important part on this plane is until you are living in unconsciously about your physical body, you will not able to establish the harmonious relationship with your etheric body. Correct. So like we have to go step by step. So first we are on the physical plane, right? So on this physical plane we have to do few things. It's not like strictly you have to follow, but few things you have to think, which I have divided in 4 parts. Right. So in your 24 hours day, right, you have to eat balanced food. Yeah. Balanced food, balance hard work, balance relaxation, balance sleep. Yeah. So इसे मैं हिंदी में ऐसे समझाऊँ तो सम्यक खाना, सम्यक हार्ड वर्क. हार्ड वर्क में आपका जो रूटीन, जो आपका जो बिजनेस करते हो या जॉब करते हो, वो भी हार्ड वर्क में ही आ जाता है. प्लस उसके साथ आप सुबह उठ के योगा, प्राणायाम, एक्टिव मेडिटेशन करते हो, वो भी हार्ड वर्क ही होता है. Right. So whatever, so hard work means wherever your physical body involves. So I mean that Hard work. that hard work. नहीं, ऐसा नहीं कि कुर्सी पे बैठे बैठे आप कंप्यूटर पे काम कर रहे हो, वो हार्ड वर्क नहीं. Correct. कुछ एक्टिविटी हो, फिजिकल एक्टिविटी होना चाहिए. फिजिकल एक्टिविटी. और उसके बाद मैंने कहा आराम.
सम्यक आराम भी चाहिए, फिर सम्यक स्लीप भी चाहिए, राइट राइट? सो ये होना बहुत जरूरी है। हम लोग सुबह से उठते हैं रात तक, अगर ये चारों चीज हमारे अंदर आ जाए और हम इसको बैलेंस कर सके, देन इट इज वेरी इजी टू बी अवेयर। करेक्ट सो उससे क्या होता है कि when you discipline this order, you have save ample amount of energy. राइट It is like, आपके पास बैंक में अकाउंट है और अकाउंट में आप रोज 100 रुपीज कर रहे हो जो जमा, राइट? रोज राइट रोज हो रहा है, रोज हो रहा है। राइट सो इट इज लाइक ये जो बैलेंस मैंने बताया आपको, फूड, खाना, सोना, वो आराम करना, अगर वो बैलेंस तरीके से रहा हो तो आपके पास एम्पल ऑफ एनर्जी आ जाए एक्स्ट्रा। करेक्ट करेक्ट सो दैट एम्पल ऑफ एनर्जी यू कैन पुट इन द अवेयरनेस, यस ऑटोमेटिकली हो जाएगी वो, क्योंकि आपके या पास एक्सेस एनर्जी है ना, आपके पास एनर्जी है, कुछ उससे उसका आप कुछ उपयोग कर सकते हो। एंड करेक्ट इफ यू हैव अ हेल्दी बॉडी, हेल्दी माइंड, या एंड तो अपने आप आपके थॉट प्रोसेस थोड़े एलिवेट हो जाएंगे। सो करेक्ट एलिवेट हो जाएंगे तो देन यू विल स्टार्ट थिंकिंग अबाउट व्हाट इज अदर देन द फिजिकलिटी, करेक्ट क्योंकि ये सब करने के लिए आपको एनर्जी होना बहुत बहुत आपके बहुत जरूरी है, ये एनर्जी। यस So the यस most important part on the first stage is to gather maximum awareness, because with this awareness you will able to enter into the into your etheric body. करेक्ट जो जो etheric body का मतलब भाव शरीर है, राइट भाव शरीर अपना। So so complete awareness about your physical act, whatever you do, every act, try to put the awareness. अवेयरनेस का मतलब आपको कोई काम नहीं है, वो अवेयरनेस काम नहीं है, दिस इज प्रोसेस, नेचुरल प्रोसेस। कुछ भी कर रहे हो, जैसे सुबह एग्जांपल आप ब्रश कर रहे हो, सो बिफोर यू ब्रश मेक योरसेल्फ अवेलेबल, आप फील करो अपने को करेक्ट कि मैं हूँ, और देखो ये एक्टिविटी ब्रश की हो रही है। सुबह ऑफिस जा रहे हो, गाड़ी में बैठ रहे हो, खाना खा रहे हो, अपने को ह्यूज ह्यूज ऐसा नहीं कि पूरा पूरा अवेयरनेस, छोटे छोटे एक्ट कर रहे हो ना, छोटे छोटे एक्ट एक्ट पे या करो सो, वो तो अपने आप आपको हो जाएगा पता। जैसे आप ब्रश करते समय खाली पीछे से देखोगे ना, तो आपको पता लगेगा कि यहाँ कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है। उसी का नाम अवेयरनेस। सी, ये अवेयरनेस अभी हम माइंड के उस पे ही हो रही है। अभी अवेयरनेस 100% नहीं है प्योर, करेक्ट क्योंकि हमारे पास मन है ना अभी, तो मन के हिसाब से ही हम लोग करेंगे, लेकिन एटलीस्ट यहाँ से हम लोग इसको स्टार्ट कर सकते स्टार्ट हैं। कर सकते करेक्ट या सो सो फर्स्ट स्टेज ऑफ दिस फिजिकलिटी इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो आपका फाउंडेशन है। करेक्ट सेकेंड लेवल पे हम क्या करेंगे? सेकेंड लेवल है हमारा इथरिक बॉडी। या सो इथरिक बॉडी यानी भाव शरीर। राइट भाव शरीर इसको बोलते हैं हम ऊर्जा, ऊर्जा का ये ऊर्जा है। सो भाव शरीर मतलब क्या? भाव शरीर में ना वो उठते हैं, स्पंदन उठते हैं, हम बोलते हैं ना वेव्स, वेव्स स्पंदन। यस 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 ऊर्जा के वो उठते हैं, स्पंदन उठते हैं ऊर्जा। या तो वो ऊर्जा के स्पंदन मतलब क्या है? ऊर्जा के स्पंदन कभी हमें उठते हैं, हेट्रेट के उठते हैं, एग्रेशन होता है, एंगर होता है, एंजाइटी होती है, राइट डिप्रेशन होता है, राइट लव होता है, राइट ब्लिसफुलनेस होता है। ये सारे जितने भी इमोशंस के एक्सप्रेशन है ना, वो आते हैं इथरिक बॉडी से। ओ अपनी इससे नहीं आते, जो फिजिकल बॉडी से उससे नहीं आते हैं, नहीं आते वो सारे पीछे से आ रहे हैं। सो इसीलिए मैंने क्या बोला कि फिजिकल बॉडी में आप जितना अवेयर हो जाओगे ना, मैक्सिमम लेवल पे अवेयर अवेयर होने की करना कोशिश, तो आपकी बॉडी है ना धीरे धीरे आर पार होने लगेगी। करेक्ट जैसे ही बॉडी धीरे धीरे आर पार होने लगेगी ना,
आपके पीछे जो इथरिक बॉडी से जो वेव्स के जो भाव आ रहे हैं ना, या एंगर के, इमोशंस के, वो आपको लिटरली होंगे, फील होंगे कि अभी मुझे गुस्सा आने वाला है। या कि आपकी अवेयरनेस का जो लेवल है वो भी इथरिक बॉडी में आ गया ना। करेक्ट करेक्ट फिजिकल बॉडी से आप इतने अवेयर हो गए, तो फिजिकल बॉडी की अवेयरनेस जो एनर्जी इकट्ठा हुई है, तो वो एनर्जी जाएगी कहाँ? एथरिक बॉडी एनर्जी में अपवर्ड होएगी ना, मूव। करेक्ट सो इसीलिए फिजिकल बॉडी में बहुत एक्सेस ऑफ एनर्जी होनी चाहिए। वो हमारा जंक्शन बेस है, फाउंडेशन। जब तक वहां फाउंडेशन में जमा नहीं होती एनर्जी, एनर्जी ऊपर नहीं जाएगी। तो फिजिकल बस बॉडी का अवेयर होना बहुत बहुत जरूरी है। बाकी सब भूल जाओ पहले, इथरिक बॉडी वो सब बॉडी को सब भूल जाओ। अभी आप फिजिकल हो, उसी का रात दिन बस वही सोचो, फिजिकल में अवेयर हूँ, मैं फिजिकल सब कुछ कर रहा हूँ। राइट खाना खाना भूल जाना एक दिन, अवेयरनेस मत भूलना। ब्रश करना भूल जाना, वांदा नहीं चलेगा, अवेयरनेस को मत भूलना, क्योंकि अवेयरनेस आपको आखिर तक लेके जाएगी। सो अवेयरनेस का बहुत बड़ा रोल है यहाँ। जैसे जैसे अवेयर होगे, आप आपका प्रवेश इथरिक प्लेन में हो जाएगा। सॉलिड और राइट, और as soon as you enter into the etheric plane, right, जो आपके जो एक्सप्रेशन है ना, एक्सप्रेशन बिफोर फिजिकल प्लेन में आने से पहले आपको हो जाएंगे पता। हाँ अर्ली वार्निंग सिस्टम बैठ जाएगा ये पूरा साइंटिफिक है, पूरा साइंटिफिक है। इसमें कुछ करेक्ट भी वो नहीं है, गप नहीं है कि मैं ऐसे ही कोई बोल रहा हूँ। साइंटिफिक 1+1=2, ऐसा ही होगा, ऐसा ही मिलेगा आपको। चाहे मेक चाहे सेंस आप चाहे कोई किसी और बुद्ध पुरुष से कहा हो, किसी और हिसाब से कहा हो, किसी और ने और हिसाब से कहा हो, या लेकिन द मोमेंट अवेयरनेस आपकी इथरिक बॉडी में प्रवेश होगी, आपको ये सब फील होना तो पक्का ही। आप पक्का ही खुद है देख लो, और आपको इतना मजा आएगा फिर, यू विल एन्जॉय योर लाइफ। तो आपको पता चलने लगा कि मेरे अंदर क्या उठ रहा है। करेक्ट वासना उठ रही है, डिजायर उठ रही है, राइट? ये हो गया सेकंड लेवल। अभी या आते हैं थर्ड लेवल पे। अच्छा, और एक सेकंड लेवल में और एक चीज मैं बोलना भूल गया। सेकंड लेवल पे जब भी आप ध्यान करने बैठोगे ना, अगर आप फर्स्ट और सेकंड लेवल में हार्मोनियस रिलेशनशिप आपका हो गया, तो ध्यान में गहरे जाओगे ना, यू विल लिटरली फील योर योर फिजिकल बॉडी एक्सपांड्स। वाओ एक्सपांड नहीं होती, इथरिक है, करेक्ट फिजिकल बॉडी तो वही, बट योर ईथर विल एक्सपांड लाइक स्काई। एक्सपैंड आपको लाइक ऐसा लगेगा कि मैं पूरा फैल गया ध्यान में, और ऐसा ऐसा लगेगा आपको इतने छोटे से छोटा हो गया, अणु हो गया। ऐसा भी फील हो सकता है। आपको ध्यान में ऐसा लगेगा कि मैं उठ जमीन से उठ गया ऊपर। यू विल राइट लिटरली फील दैट। फिजिकली होता नहीं, फिजिकली भी हो सकता है ये, बट राइट फिजिकली जब भी आप ध्यान में से बाहर आके आँख खोलोगे तो आप तो उधर ही होंगे। करेक्ट लेकिन ईथर जो है ना, वो क्योंकि वो फिजिकल बॉडी नहीं है ईथर, करेक्ट तो वो इजीली एक्सपांड हो सकता है, इजीली छोटा। इसको छोटा हो आप इस सकता तरह से समझो, राहु केतु कैसे होता है? राहु मतलब क्या? एक्सपांशन। है एक्सपेंशन केतु मतलब कॉन्ट्रैक्शन केतु मतलब कॉन्ट्रैक्ट। ऐसा होता है पूरा ये लिटरली होता है एक्सपीरियंस। अच्छा, वाओ तो ये तो दोनों फिजिकल बॉडी में अवेयरनेस उस तरह से उस तरह से आ गई। सो नाउ योर अवेयरनेस इज रेडी टू एंटर इनटू द एस्ट्रल बॉडी। राइट सो फर्स्ट बॉडी और सेकंड बॉडी से रिलेशनशिप के बिना थर्ड बॉडी में तो जाना भूल ही जाओ, सोचो करेक्ट ही मत। क्योंकि करेक्ट हम फिजिकल लेवल पे अभी इतने अनकॉन्शियस है, हम्म तो अभी तो हमको वो भी नहीं पता कि इथरिक बॉडी का क्या 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 हिसाब क्या किताब। हिसाब किताब करेक्ट इसीलिए फिजिकल बॉडी में अपने को अवेयर होना बहुत जरूरी बहुत जरूरी है। थर्ड बॉडी है एस्ट्रल बॉडी।
एस्ट्रल बॉडी का मतलब सूक्ष्म बॉडी, सूक्ष्म। फिजिकल से भी सूक्ष्म इथरिक है। ईथर का भी सूक्ष्म पार्ट है एस्ट्रल। ओह, माइन्यूट से माइन्यूट। माइनस जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ते जाएंगे वैसे ये वो सूक्ष्म छोटा बॉडी होता है। छोटी से छोटी से छोटी से छोटी होती जाएगी। और पता है अपनी आत्मा जो हम सोल कहते हैं उसका क्या है, शेप क्या है? इतना छोटा सा है, अंडाकार जैसा है। अंडाकार जैसे इतना छोटा सा, करेक्ट। शिवलिंग जैसा है, राइट। लेकिन ब्राइट है वो। आप देखो अणु को देखो, पता है साइंटिस्ट कहते हैं कि 2 अणु के बीच में इतनी जगह है जितनी स्पेस, एक स्पेस से आप अलग स्पेस में भी जा सकते हो। राइट। इतना बड़ा गैप है। तो वो करेक्ट। छोटा अणु मतलब बहुत बहुत बड़ा बहुत बहुत ह्यूज है ह्यूज। वो। करेक्ट। तो एस्ट्रल बॉडी में एज सुन एज यू एस्टेब्लिश 2 बॉडी के साथ हुआ, इमीडिएटली एस्ट्रल बॉडी में आए। एस्ट्रल बॉडी में क्या है पता है? सिर्फ वेव्स है, सिर्फ वेव्स। सिर्फ वेव्स है, एनर्जी के वेव्स, इलेक्ट्रॉन है एनर्जी के। इस आप साइंस की भाषा में समझो। अभी वो करेक्ट। इलेक्ट्रॉन, अभी जो देखो साइंस, आउटर वर्ल्ड में साइंस ने तो इलेक्ट्रॉन तक तो वो आगे पहुंच गए। करेक्ट। अभी साइंटिस्ट क्या कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन कभी वेव्स की तरह बिहेव करता है, कभी करेक्ट। मैटर की तरह करता है बिहेव। करेक्ट। कभी वेव्स कभी मैटर, उसका कोई पक्का नहीं है वो क्या करेगा बिहेव, करेक्ट। श्योर नहीं है। राइट। सो ये जो जो सूक्ष्म शरीर है, ये जो एस्ट्रल बॉडी है उसमें वेव्स है। अभी वो वेव्स वहां से छूटी, इथरिक प्लेन में आई। अभी वो इथरिक प्लेन में आके क्या बनेगी? गुस्सा बनेगी कि लव बनेगी, हेट्रेड बनेगी कि डिप्रेशन बनेगी, उसका कोई ठिकाना नहीं है, कोई उसका कोई ठिकाना नहीं। पक्का नहीं है। राइट। राइट। सो सो आप उसको इस तरह से समझो, द वेव्स, द एनर्जी, द कंडेंस्ड वेव ऑफ द एनर्जी बिकम भाव, इथर। जो कंडेंस्ड थर्ड वेव लेवल ऑफ पे जो एनर्जी। थर्ड ओके। जो थर्ड लेवल पे जो खाली वेव्स थे एनर्जी की, ओके। वो सेकंड लेवल पे आके सॉलिड हो जाती है, कंडेंस हो गॉड। जाती है। कंडेंस वो हो जाता कंडेंस एनर्जी फिर अपने फिजिकल प्लेन में आती है, वो है। राइट। फिजिकल प्लेन में आके एक्ट हो जाती है। ओके। समझे? जो समझा। थर्ड थर्ड लेवल से एनर्जी छूटी, वो हम्म। आके भाव शरीर में आके कुछ हो गई। अभी करेक्ट। क्या हो गई वो पता नहीं। समझो एंगर हो गई, तो राइट। एंगर वो फिजिकल बॉडी में आ जाता है और फिर हम लोग बाहर एक्ट करते हैं उसी एंगर से। हम लोग किसी दैट्स को मार देते हैं, किसी को कुछ कुछ कह देते हैं, या अपने आप ही अपने ऊपर ही गुस्सा हो जाते हैं। राइट। बराबर है? तो करेक्ट। ये तो ऐसा है पूरा सिस्टम। और यहाँ भी अवेयरनेस ऐसी काम करेगी। अगर पहले 2 शरीर में अवेयरनेस आप बराबर साधी होगी थोड़ी-थोड़ी, तो यहाँ आपको एन एंट्री मिल जाएगी ऊपर। करेक्ट। और करेक्ट। एस्ट्रल बॉडी में भी ऐसा है, गहरे ध्यान में जब भी आप जाते हो ना, यू कैन लिटरली ट्रैवल एस्ट्रली। बोलते हैं ये ना तो सुना है। एस्ट्रल ट्रैवल, हाँ, ये तो सुना है मैंने, एस्ट्रल एस्ट्रल ट्रैवल। ट्रैवल होता है। या। आपकी आप फिजिकली यहाँ अमेरिका में होके भी इंडिया में, भारत में हो सकते हो। करेक्ट। दिस तो आई हैव लेकिन हर्ड। वो उस लेवल का मेडिटेशन भी होना चाहिए। राइट। उस लेवल का उस मेडिटेशन लेवल भी की होना चाहिए। उस लेवल की अवेयरनेस भी होनी चाहिए। क्योंकि करेक्ट। एक बार आप फिजिकल बॉडी से आपका सोल तो निकला, लेकिन वो राइट। उसको वापस वापस आना आना चाहिए। नहीं तो राइट। भटक जाएगा, वो बॉडी भटक वहां जाएगा। पड़ी रहेगी, तुम भटके। भटक के। तो ये सब, लेकिन ये सब होता है, राइट। ये चीजें होती है। सो दीज ऑल प्लेन्स आर इंटरकनेक्टेड है यार। तो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड बॉडी को आपको ऐसा सिंक्रोनाइजेशन में लाना है। हम्म। उस सिंक्रोनाइजेशन में जब ये ऊर्जा आपके ऊपर उतरे, राइट। या समझो ब्लेसिंग्स उतरे, या कोई आपके ऊपर क्या बोलते हैं उसको, शक्तिपात जैसा कुछ एनर्जी आए आपके अंदर, तो राइट। आपकी ये फर्स्ट सेकंड थर्ड बॉडी अलाइन होनी चाहिए प्रिपरेशन में, तो वो एनर्जी को ग्रास्प कर ले सके पूरी ग्रास। की पूरी।
हाँ, तो मोटा मोटा हिसाब ये हो गया कि एंटीना जो है उसको अलाइन करना जरूरी है, ऊपर से एनर्जी आएगी तो सिग्नल पकड़ ले। एग्जैक्टली। सो सो यही पूरा। और एक चीज मुझे बतानी है कि देखो, हमारे पास अ, ये अष्टावक्र को आपने कभी हर्ड हर्ड किया होगा। राइट। अष्टावक्र, राइट? राजा जनक और अष्टावक्र। सो यस। जब भी अष्टावक्र जनक के पास गए तो अष्टावक्र के बात करते करते ही जनक हो गया था, बोध हो गया था। बहुत हो गया। वहीं वहीं अष्टावक्र को सुनते सुनते बोध हो गया। तो अष्टावक्र गीता आप जब भी आप समझोगे ना, अष्टावक्र गीता इज लाइक हाई लेवल ऑफ अवेयरनेस, जिसमें जिसमें कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग का मार्ग है वो। ओके। अगर आपको अंडरस्टैंडिंग आ गई, समझ आ गई ना, तो ये सब मेहनत करने की जरूरत ना, हठ योग जरूर। करने की जरूरत है, ना राजयोग करने की जरूरत। आप सीधे सीधे पहुंच जाएंगे। तो ये अष्टावक्र ने कहा था कि हमारे पास है ना थर्ड उर्मिया है, उर्मिया। जैसे ओके। हम लोग कहते हैं षड रिपु कहते हैं। षड रिपु कहते हैं, षड, करेक्ट। जैसे हमारे पास छह छह उर्मिया है। ओके। एक है भूख और प्यास। करेक्ट। भूख और प्यास मिला के दो। एक ही। शोक और मोह, राइट। जीवन और मृत्यु। राइट। सो भूख और प्यास अपने को फिजिकल होती है ना, करेक्ट। फिजिकल लेवल पे। शोक और मोह अपने को इथरिक बॉडी में होता है। राइट। करेक्ट। हाँ, और जीवन और मृत्यु अपने को एस्ट्रल में होता है। ये उस प्राण वहां से निकल गया। निकल वैसे गया। प्राण, वैसे तो प्राण की जो डेथ आती है, चाहे योगी की हो, चाहे किसी बुद्ध पुरुष की हो, वो सातवें शरीर से आती है। राइट। यहाँ से आती है। चाहे राइट। कोई नॉर्मल आदमी की भी हो, ये सबकी डेथ यहाँ से आती है। लेकिन डेथ में उसकी कंडीशन क्या होती है वो हर एक के ऊपर है, डिपेंड करता डिपेंड। तो ये जो उर्मिया है, है। राइट? सो ये उर्मिया, वन हु गोज बियॉन्ड दिस उर्मिया, हम्म। भूख प्यास शोक मोह, लाइफ एंड जीवन डेथ, मृत्यु। या। राइट? मीन्स यू यू आर, इट मीन्स, बोलने का मतलब है कि यू आर प्योर विटनेसिंग कॉन्शियसनेस हो। करेक्ट। The one who never did any act, एक्ट। he's always beyond mind, death, body, and always stay on Sakshi. साक्षी। करेक्ट। So इसको, अगर आप इसको साध लोगे हम्म। तो आपको और कुछ साधने की पड़ेगी जरूरत नहीं, है। जरूरत। कुछ योगा वोगा कुछ करने की जरूरत नहीं, लेकिन योगा वोगा वो सब प्रैक्टिस थोड़ी बहुत करनी पड़ेगी। अगर ट्रू। आपकी समझ का लेवल उतना हाई चला गया है, राइट। तो समझ के लेवल हाई जाने के लिए अवेयरनेस बहुत जरूरी करेक्ट। है। तो इसीलिए जो फर्स्ट सेकंड थर्ड बॉडी का मैंने ऑलरेडी रिलेशन अभी आपको एस्टेब्लिश किया। नाउ राइट। ओशो है ना, ओशो का एक, हम ओशो हमेशा कहते थे, और जितना भी मैनी मास्टर्स पास्ट में हुए, जो भी है, वो क्या कहते थे, योर योर बीइंग इज एब्सोल्युटली प्योर एंड फ्री, हम्म। नेवर बॉर्न नेवर डाई, never born, never die. करेक्ट। Just come here to visit on this planet Earth. करेक्ट। हम कभी ना मरे हैं, ना कभी अब हम, राइट? हम खाली आते हैं यहाँ, इस अर्थ प्लेन अर्थ में हम आते हैं, और यहाँ हम हमारी एक्टिविटीज होती है, जो भी हम उसको बोलते हैं कर्मा थियरी बोलते हैं, या जो भी कुछ बोलते हैं हम। तो ये है चीज। और एक और एक चीज मुझे ध्यान में आई है कि एस्ट्रोलॉजी में हम यूज करते हैं एक टर्म, धर्म अर्थ काम मोक्ष। करेक्ट। द त्रिकोण्स, फोर त्रिकोण्स। या चार चार चीजें यूज करते हैं, बराबर? हम्म। उसका अर्थ, मतलब अर्थ अर्थ हम उसको समझाएंगे। देखो, ओके।
पहला है धर्म, फिर अर्थ है, फिर काम है, फिर लास्ट में मोक्ष आता है। करेक्ट, काम और मोक्ष काम और अर्थ बीच में, अर्थ और काम बीच में। करेक्ट, फर्स्ट धर्म है, लास्ट राइट, मोक्ष है, करेक्ट, बराबर? तो अर्थ को काम को मैं यहाँ दो दो हिसाब से लूंगा, एक सेक्स डिजायर भी है और एक वासनाएं भी, अलग वासना करेक्ट, और सब है, इच्छा है। राइट, तो दोनों इच्छाएं पूर्ति करने के लिए हमें अर्थ चाहिए, और चाहिए, राइट, बराबर? और मोक्ष पाने के लिए हमको धर्म चाहिए, धर्म चाहिए, बराबर? सो राइट, अपने पास दो एंड है, धर्म का और मोक्ष का। करेक्ट, तो वो दोनों एनर्जी को एस्टैब्लिश करने के लिए बीच में अपनों को काम और अर्थ चाहिए। राइट, हाँ, अभी मैंने एक ऐसा बनाया है, ऐसा ब्रांचेस बनाई है। करेक्ट, काम वासना है ना, काम वासना और जो भी डिजायर है वो अपनी मेन वासना है, अल्टीमेट वासना है, ऐसा समझो। हुँ, हाँ, हुँ, काम काम के काम के दो बेटे हैं, हुँ, हुँ, काम वासना के दो बेटे हैं और दो बेटियां। ओके, दो बेटे हैं, क्रोध और मोह। काम ओके, वासना के दो बेटे हैं, एक क्रोध, एक मोह। ओह! राइट, क्रोध के भी दो बेटे हैं, एक घृणा, एक ईर्ष्या। वाह! मोह के मोह मोह की दो बेटियां हैं, एक लोभ और एक लालच। लोभ और लालच में डिफरेंस क्या हो जाएगा? एक है ग्रीड और करेक्ट, एक है लस्ट। ओह! ग्रीड एंड लस्ट लस्ट, लस्ट हाँ, समझ लस्ट गया, फॉर लाइफ। फैंटास्टिक, या तो सेक्स वासना सबसे ऊपर है। अगर सेक्स वासना ट्रांसफॉर्म हो गई तो ये सब अपने आप ट्रांसफर हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा ट्रांसफॉर्म। इसको अलग वाओ! से कुछ साधने की जरूरत नहीं है। ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसीलिए साधना में क्यों सब लोग ने बोला है ब्रह्मचर्य का इतना महत्व क्यों है? करेक्ट, ब्रह्मचर्य का महत्व इसे, लेकिन ब्रह्मचर्य थोपना नहीं है अपने ऊपर, कुछ करेक्ट, कंट्रोल करके, कुछ एनर्जी को प्रेस करके और वो कुछ रुका के, नेचुरली जो होता है वही ऊर्जा ऊपर उठनी चाहिए। जैसे हुँ, जैसे आपकी ऊर्जा ऊपर उठने लगेगी, ब्रह्मचर्य अपने आप होने लगेगा। ऑब्वियसली, कुछ करना, उ- बाहर से मत कुछ थोप लेना अपने ऊपर। करेक्ट, ये एनर्जी इतनी वाइल्ड एनर्जी है ना, अगर उसको सप्रेस करते गए तो एक दिन ऐसा स्प्रिंग उड़ेगी ना, तो ये जो सारी फिर थॉट्स में जो विकृति आती है ना, वो वो सब आ जाएगी, एनर्जी का जो वो होता है ना, एनर्जी अच्छी तरह से यूज नहीं हुई है, सप्रेशन वाली एनर्जी है ये। ओके, वापस वापस से मैं उसको बोलता हूँ ट्री को, सेक्स के दो दो बेटे हैं, क्रोध करेक्ट, और मोह। करेक्ट, क्रोध के दो बेटे हैं, हेट्रेट और जेलसी, राइट, घृणा और ईर्ष्या। करेक्ट, अभी हाउ इट वर्क्स, देखो, अगर आपकी वासना हो गई, समझो आपकी कोई वासना है जैसे बिजनेस करने की या प्रोफेशन करने की, उसमें अगर किसी ने अड़ंगा डाला तो राइट, आपको क्या आता है? गुस्सा, आपको गुस्सा आता है, करेक्ट, बराबर? अगर वो बिजनेस में आप सक्सेसफुल हो गए तो आपको क्या होता है? मोह होता है, और मोह बढ़ाओ, और और बढ़ाओ, बढ़ाओ, और करेक्ट, बढ़ाओ, बराबर? अगर कोई और कर रहा है हुँ, और वो बिज़नेस को आपको देख के ऐसा लगता है यार ये तो बहुत आगे बढ़ गया मेरे से, तो क्या होती है? ईर्ष्या जेलसी, होती है, ईर्ष्या, जेलसी होती है, राइट, बराबर? इस बाजू जो मोह के जो बेटियाँ हैं 2, अगर डिज़ायर होती गई अपनी कंप्लीट पूरी होती गई, तो और लाओ, और लोभ लाओ, जगता है, करेक्ट, लस्ट जगती है, लस्ट फॉर करेक्ट, लाइफ, या लस्ट फॉर लाइफ। और यहाँ किसी ने वासना अपनी डिज़ायर में किसी ने अगर बीच में ऑब्स्ट्रक्शन डाला,
करेक्ट। तो ईर्ष्या होती है, हेट्रेट होती है। राइट। समझ में आया ये पूरा या ट्री? या काम वासना से शुरू होती है, स्प्लिट होती है, क्रोध और मोह बन जाती है, फिर राइट। स्प्लिट होती है 4 में, घृणा, ईर्ष्या, लालच, लोभ। मेक सेंस? सुपर है, सुपर है, सुपर है। तो अगर इसीलिए जो अवेयरनेस साधेगा, जो साधना में अवेयर, क्योंकि अवेयरनेस क्या करती है, सीधी उस पे ही काम करती है। अभी आप समझो टॉप जो मोस्ट पे। फर्स्ट सेकंड थर्ड बॉडी, जो मैंने क्या बोला, फर्स्ट सेकंड थर्ड बॉडी, इथरिक बॉडी में ये सब कुछ है। क्रोध, करेक्ट। मोह, लोभ, लालच, ग्रीड, इथरिक बॉडी में है। एस्ट्रल बॉडी में तो प्योर वेव्स है, करेक्ट। शुद्ध ऊर्जा है। अभी राइट। एस्ट्रल बॉडी से एक ऊर्जा वहां से बाहर निकली, छूटी, इथरिक बॉडी में एंटर की। राइट। इथरिक बॉडी में एंटर होके ये सब हो जाती है, चाहे क्रोध हो, मोह हो, ये। करेक्ट। और फिर फिजिकल बॉडी में आते हम लोग उस पे एक्ट करते हैं, एक्ट करते हैं। क्रिया हो जाती है ना। करेक्ट। तो अभी आपको बराबर समझ में आ गया रिलेशन, फर्स्ट सेकंड थर्ड बॉडी, हाउ इट वर्क्स, या क्लियर राइट? हो रहा है। अभी अभी इसमें एक अभी समझो, जैसे ही आपने अवेयरनेस फर्स्ट सेकंड थर्ड लेवल पे आई ना, इमीडिएटली आपको पूरा दिखेगा अपने अंदर ही कि वहां से ऊर्जा छूटी है, इथरिक बॉडी में प्रवेश हुई है, भी वहां ये क्रोध बनने वाली है। तो आप हाँ, अवेयरनेस को वही देखो ना, तो क्रोध वही वही हो जाएगा शांत। कंट्रोल कर सकते हैं उस चीज को। वही आप बाहर भी देखना, फिजिकल एक्ट करके ही देखना, जब भी आप क्रोध आए ना, थोड़ा थोड़ा अवेयर हो जाना, हम्म। आपसे गुस्सा हो नहीं पाएगा, इम्पॉसिबल, गुस्सा करना इम्पॉसिबल हो जाएगा। भाई शाबाश। क्या, मन का नेचर है, मन एक ही टाइम पे एक ही काम करता है, या दैट तो इज ट्रू। क्रोध करेगा, या तो क्रोध करेगा, या तो अवेयर होगा। करेक्ट। वो अवेयर अवेयर होके क्रोध नहीं कर सकता। करेक्ट। या मन लोभ करेगा या अवेयर होगा, तो लोभ और लालच और अवेयरनेस एक साथ में नहीं कर सकता मन। अभी करेक्ट। आपको समझ में आया, अवे समझ में आया। व्हाई आई एम पुटिंग, इतना क्यों वजन दे रहा हूँ मैं अवेयरनेस पे। राइट। सारे जड़ की मूल अवेयरनेस, 100 तालों की एक ही चाबी, अवेयरनेस। करेक्ट। इसको सेट कर लिया अवेयर तो हो जाओ बाकी बस। अपने आप हो जाएगा। होश होश संभालो। बुद्ध ने पूरे टाइम पे 40 साल जो बोले, क्या बोले, साक्षी हो जाओ, अवेयर हो साक्षी हो जाओ, जाए। होश से जियो, बोध बोध को पकड़ो, अपने करेक्ट। बोध को पकड़ो। सारे बुद्ध पुरुषों का घूम फिर के वो सब योगा वोगा प्राणायाम बोल बोल के फिर इसी पे ले आएंगे। तो करेक्ट। मैं आपको सीधा ही बोलता हूँ, आप सीधा अवेयरनेस पे ही कर दो ना, काम करना शुरू। बाकी करेक्ट। के प्राणायाम एक्टिविटी उसकी वजह से होने लगेगी। अपने आप होने जब लगेगा। भी जब भी आपको आपको लगता है कि मुझे अवेयरनेस साधनी है, तो आपको एनर्जी चाहिए। राइट। एनर्जी के लिए आपको योगा प्राणायाम करना पड़ेगा, राइट। एक्टिव एक्टिव होना पड़ेगा, बैलेंस राइट। फूड करना पड़ेगा, आराम करना पड़ेगा, सोना पड़ेगा। वो सब एक दूसरे से लिंक, ऐसा नहीं है वो कुछ अलग है। ऊपर से नीचे तक एक दूसरे से, सब एक दूसरे से इंटरलिंक्ड। करेक्ट। जिसने जिसने भी वन शुड वर्क अपॉन दिस फर्स्ट सेकंड थर्ड बॉडी, हम्म। तो उसके लिए कुंडलिनी के मार्ग पे जाने का रास्ता क्लियर हो जाएगा। खुल जाएगा। he can work on that, he can वो एनर्जी को एब्जॉर्ब कैसे करना उसको आ गया है ना, हम्म। करेक्ट। तो एक्सीडेंट नहीं होगा, एक्सीडेंट नहीं होगा। करेक्ट। राइट? तो या नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग बात करेंगे ये जो अलाइन करने की, हाउ वी विल डू दैट। तो उसके करेंगे लिए, कैसे अलाइन। या हाँ, उसको उसके लिए मैंने बहुत सारी, कम से कम 15 से 20 ध्यान की वो बनाई है, मेथड्स है, ओके। जो मैंने खुद की है, प्रैक्टिस की है।
तो हर एक Fantastic. मेथड पे आपको थोड़ा-थोड़ा समझा दूँगा कि ये मेथड आप इस तरह से आप कर सकते हो। कर सकते हैं। और वो मेथड करने के बाद फिर हम लोग समझेंगे मेन सबको इंतज़ार होता है ना, कुंडलिनी एनर्जी क्या है? व्हाट इज़ राइट, कुंडलिनी? राइट। कुंडलिनी एनर्जी जब भी एंटर होती है, फर्स्ट लेवल पे क्या करती है, सेकंड लेवल पे लेवल क्या पे करती क्या है, करते हैं? थर्ड प्लेन में क्या करती है, फोर्थ प्लेन में क्या करती है। तो फिर पूरा खोलेंगे साइंस धीरे-धीरे। लेकिन ये मैंने फैंटास्टिक। 6 एपिसोड में पूरा बेस बना दिया। करेक्ट, देखिए इतना इतना सारा मैं सब तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन ये मैंने जितना छाँट-छाँट के बोला है, करेक्ट। छाँट-छाँट के एक उसमें बता दिया मैंने। और तो जितना हो सके उतना मैं एक्सप्लेन एक्सप्लेन कर लूँगा। लेकिन अ, मेरा मेन थीम है कि ये आपको समझा दूँ कि आपके फिज़िकल बॉडी के अंदर क्या-क्या छुपा है। और ये समझ परफेक्ट। में आ जाएगी तो साधना बहुत ईज़ी हो जाएगी। बहुत सही। आप आपके पास वो याद है ना, जब भी आप करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये ऐसी-ऐसी चीज़ होगी आगे। हो गया, आ गया। So thank you once again, and thank you to my Sadhguru Osho, and all this knowledge which I have gained, which I have understand, is only because of him. Thank you. Fantastic, sir. Fantastic. And this has been another revealing episode. And thank you to all the viewers and listeners. Please do like, subscribe, share, send in your queries, whatever you have. And we will see you again in the next episode with another amazing revealing thing from Nilesh. Thank you.